Good morning, newly admitted students of Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior. We welcome you to MITS. I am Dr. Manjari Pandit, the Dean of Academics, and I am going to address you today on different academic issues, different personality grooming issues, which you will have to follow during your 4-year tenure here at MITS. We like to inform you about the different provisions which are there for your development. Number one, all MITS students must know the vision of the college, of the institute. Okay, so the vision is to create world-class quality engineers and technocrats capable of providing leadership in all spheres of life and society. The mission, that is, the steps to achieve the vision, are to provide quality education in technical and allied disciplines, to organize and arrange innovative courses in engineering and technology, to arrange vocational courses in the upcoming fields and innovative subjects to meet global advancements, and to promote research in the fields of technology and science. The branding statement of MITS is Mission to Innovate Technology for Society. MITS. You have, my dear students, you have joined an institution which is more than 60 years old, and very big people have laid the foundation stone of the institution. The first President of India, Dr. Rajendra Prasad, then late Dr. Radhakrishnan, the second President of India, have been associated in installing the foundation of this particular institution. So MITS stands behind you. From now on, you will be called as MITians, and keeping the glory and the name of MITS, keeping the flag, MITS flag high, will be your responsibility from now on. We have very good, very prominent alumni during these more than 60 years. The institute started functioning in somewhere in 1956-57, and we also celebrated, it was a very grand gala celebration when we celebrated the Diamond Jubilee in 2017. MITS is an autonomous institution. It has got academic autonomy. That means that we have our own courses and syllabi. We have our own examination pattern. We have our different papers from the other university institutions. So you all must, once you are here, contribute, give your suggestions so that we have a curriculum, we have course structure, we have a syllabus which is the best in the state and in the country, because we will be constantly taking your feedback. We develop our curriculum, our syllabus, based on feedback from all stakeholders, employees, your future employees, our alumni, our students, our faculty, and even parents. If some parents are listening, they can also tell us that if some new things or new ideas are to be incorporated, they will be very soon incorporated in the syllabi. Every year we are changing, and our syllabus is exactly up to date. This is possible due to the MITS autonomous status which we have. Other than that, the institution is also accredited by the National Assessment and Accreditation Council, NAAC. So these are some of the achievements of the institute, and once you join it, it will be your duty also to contribute in the development and in branding the institution. The institute has 14 undergraduate courses and 13 postgraduate full-time courses, 4 new engineering programs, and 1 PG program, that is MBA, was started this year, has been started this year. The intake of undergraduate students is 1,120, which is, you see, highest in the state of Madhya Pradesh.
and the postgraduate student intake is 339. We have more than 100 PhD scholars registered here under different schemes. This is a list of because you can watch all these recordings at your own time in your own place, so I need not read out from here. This is the list of the PG programs and the total seats which we have, and these are the undergraduate programs and their total seats. Now these seats, these new branches have also been shown here. From this year onwards, MITS proudly announces that we started mathematics and computing, information technology, in artificial intelligence and robotics. Then Internet of Things will be offered by IT department, and Internet of Things will also be offered by Electrical Engineering department, as Internet of Things is an interdisciplinary field and it has got applications and job opportunities in variety of areas. So we will incline the courses such that it becomes an interdisciplinary and very, very job-oriented, job-focused course. So once again, welcome all the new students who are here. First of all, because I am the Dean of Academics, so I'd like to tell you about how we are going to conduct your classes, how we are going to conduct this online semester. So on this one slide, I have tried to place the digital teaching learning action plan of the institute, which was drafted in July and which has been implemented for your senior batches with effect from 15th of July. तो उन सब बच्चों की जो क्लासेस हैं वो तो 28 नवंबर को, मतलब कल ही ख़त्म भी होने वाली हैं. सो वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग one full semester in digital mode. And once again, I am very humbly, I will like to say that MITS has conducted all the classes and recorded all the classes. They are all available for the students, and perhaps no other institution can boast of having an online class plus recorded class. So I hope that the new students will also be able to take the advantage of the plan which we have made. The action plan which MITS is going to follow is based on the MHRD Pragyata guidelines. We have customized those guidelines which were given by the Ministry of Human Resource Development and customized it to our needs so that our students do not lose any time due to the COVID-19 situation. And the faculty and staff members of the institute have also worked very hard to shift from offline mode to online mode. It was, I tell you my dear students, it was a great exercise and lot of effort has gone into it. Now it is up to you how much advantage you take. In this plan, we have tried to develop online as well as offline teaching facilities for students, because as we all know, there are data limitations, there are disruptions in internet. Some students may not be having laptops or even mobile phones also. So we have taken into consideration all these factors. If you have a will, there will be no problem for you to learn. Even the laboratory courses have been recorded and they are also being conducted online, and we hope that somewhere very soon you will be able to come to the institution and actually practically also conduct the experiments which actually you have so far you will be only seeing in recorded or virtual mode. So I'll tell you about the plan. Number one, we have developed a weekly module, you see. So you have to be very regular. The teaching will be done on a weekly basis, you see. So छोटे से steps आपको लेने हैं, first week, second week, third week. So आप try to understand this on a weekly basis. अपने दिमाग में weekly picture fit कर लीजिए कि एक week में मुझे क्या काम करना है. तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके स्टेप्स छोटे छोटे रहेंगे एंड बाद में एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स एंड योर लर्निंग विल ऑल्सो बी वेरी कंफर्टेबल. नंबर टू, वी हैव ऑनलाइन इंटरैक्टिव थ्योरी क्लासेस. 3 hours are devoted to per course
course matlab subject. So for per subject we are devoting 3 hours per week. So if you have 5 subjects, you have 15 hours of interactive classes which the teachers conduct with the help of Zoom or Google Meet. Your attendance is also recorded on Moodle. You will all very soon be familiar with the Moodle also, because Moodle has played a very important role in keeping MITS ahead of all other institutions in the state, particularly during this COVID era when everything has gone online. So as I said, हर कोर्स के हर सब्जेक्ट के आपके 3 घंटे की पढ़ाई होगी वीक में, ठीक है। उसके बाद हर सब्जेक्ट में आपका एक छोटा सा क्विज होगा जो मल्टीपल चॉइस होगा और वो मूडल पर होगा, ठीक है। मूडल क्या है, सबसे नीचे देखिए इसी स्लाइड में, मूडल, द फुल फॉर्म ऑफ मूडल इज मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये एक एकेडमिक लर्निंग सिस्टम है जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट की सभी फैकल्टी और सभी स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ मेंबर्स एनरोल्ड हैं, ठीक है, सब आप लोग इस पे हैं। तो जो भी टीचर्स आपको बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्विज देंगे, असाइनमेंट देंगे, वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होगा और आप अपने घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन आकर फटाफट वो सब चीज़ें कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने समय में भी पढ़ सकते हैं उसको व्हेन यू वांट, ओके। सो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। आपको ये सोच के पीछे नहीं रहना है कि अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी क्या पढ़ेंगे, अभी तो मन नहीं लगता घर पे बैठ के। ऑल दीज आर माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर एक्सक्यूजेज। आज के समय में पूरा के पूरा फोकस आपके करियर का, आपकी लर्निंग का टोटली आपके पास है। द फोकस इज ऑन यू। इफ यू वांट यू कैन अचीव एनी डिजायरेबल हाइट्स। आप हमारे सामने नहीं हैं, you are not here, but we'll do our best. But you should also reciprocate by giving your best. Okay? So I was telling you about the model. So हर हफ्ते 3 क्लासेस होंगी, एक क्विज होगा हर सब्जेक्ट का जो आपको देना है, और एक शॉर्ट असाइनमेंट भी आपको हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में पर वीक करना होगा मूडल पे। तो एक वीक में आपको ये सारा काम करना है। इसके अलावा प्रत्येक लैब की आपकी एक टर्न रिकॉर्डेड आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी और लैब से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेस फैकल्टी देंगे। तो आपको वो सारा रोज के रोज, अगर आपने उसको कंपाइल कर दिया, एक जगह पाइल अप कर दिया, या अगर आपने बाद में, इफ यू आर इन अ मूड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो आप हर वक्त एक्सक्यूज ही बनाते रहेंगे कि मेरे पास तो डेटा नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये और वो। बट देखिए अल्टीमेटली यू विल ओनली लूज, वी डोंट वांट द स्टूडेंट्स टू लूज। सो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। डेटा की प्रॉब्लम्स हैं तो सारे लेक्चर्स आप देखिए नीचे से दूसरा पॉइंट, all the online lectures are recorded by the teachers, okay? तो जो बच्चे रिकॉर्ड लेक्चर के टाइम प्रेजेंट हैं वो तो हैं ही, उनकी अटेंडेंस वगैरह भी लग रही है, पर किसी कारण से अगर आपका नेट नहीं चल रहा है या आपको डेटा की प्रॉब्लम है और कोई लेक्चर बीच बीच में या कुछ एक लेक्चर्स आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जैसे अभी भी आप मुझसे कैसे रूबरू हो रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो सिमिलरली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे मूडल पर। द लिंक विल बी शेयर्ड बाय द फैकल्टी, सो यू कैन कंफर्टेबली वॉच इट। और एक और मज़ेदार बात होगी कि आप वो जो टीचर की जो रिकॉर्डिंग है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, 2 बार चला सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास फास्ट फॉरवर्ड का बटन होगा, आप टीचर को फास्ट फॉरवर्ड कर पाएंगे। ऐसा रेगुलर मोड में नहीं होता है कभी भी। सो हर मोड का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। आप बार बार वो लेक्चर देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आई विल एडवाइस यू कि आप लेक्चर्स के नोट्स को लेक्चर अटेंड करें। इफ पॉसिबल यू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू डाउनलोड द लेक्चर्स। डाउनलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लगेगा, एंड देन यू कैन मेक योर ओन नोट्स। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तो मोबाइल पर आपको जितना जो भी दिखता है, आप एक रजिस्टर लाइए और जो आपको समझ में आ रहा है आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, और वीकली बेसिस पे टाइम निकाल कर और डेटा का भी अरेंजमेंट करके यू ट्राई दैट यू एटलीस्ट गिव द क्विज एंड असाइनमेंट, ओके, एंड अटेंड एज मेनी क्लासेस एज पॉसिबल, डाउनलोड ऑल द क्लासेस। सो आई थिंक दिस गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। आप ऑनलाइन भी हैं, आपके पास ऑफलाइन भी है।
ज़रूरी बस ये है कि आपको एक क्विज हर सब्जेक्ट में, एक असाइनमेंट हर सब्जेक्ट में देना है, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें कि एक नीचे से तीसरा पॉइंट, 1 एडिशनल क्लास विल बी कंडक्टेड ईच कोर्स, ओके, पर वीक। एक क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा इन सब क्लासेस में से। उसमें जो है, अगर आप बच्चे अगर बाकी 15 लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन, वो जो उस सब्जेक्ट के जो 3 लेक्चर्स हैं वो आप वो अटेंड कर लीजिए ऑनलाइन, डाउनलोड कर लीजिए, सुन लीजिए उनको, देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एंड देन यू ट्राई टू कम फॉर दैट 1 additional class which is there for doubt clearing reasons. So please come to the additional classes which are for the purpose of, कोई नई चीज़ उसमें नहीं पढ़ाई जाएगी, उसमें पुराना ही आपका डिस्कस होगा। और इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स दैट ऑल्सो यू कैन डिस्कस विद द टीचर्स। that facility we are providing 1 additional class, and I think इतना आपको manage करना ही पड़ेगा because we have no other option right now under the situations. You cannot take a risk of large number of people falling sick and there are government guidelines. So यही हमारे पास best chance है। अगर आप लोगों के कुछ और suggestions होंगे तो आप अपने class coordinators को ज़रूर time to time दीजिए। ये एक समय है जब आपको WhatsApp के थ्रू, मेल के थ्रू और Moodle के थ्रू इंस्टीट्यूट से जुड़े रहना है। You have taken admission in a very old and prestigious institution, but unfortunately you have not been, you have not attended or you will not be able to attend a single day's class. आप कॉलेज में एक भी बार आ नहीं पाएंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन होपफुली ये टाइम निकल जाएगा और हमारी और आपकी मदद से और सब जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जॉइंटली, उसकी मदद से आपके एजुकेशन में या आपको जो नॉलेज मिलना है उसमें होपफुली कोई कमी नहीं रहेगी। वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। यू सी, जब कुछ एक्सेप्शनल टाइम्स होते हैं तो उनके लिए एक्सेप्शनल मीन्स भी हमें लेने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स। तो ये वही टाइम्स हैं। ऐसा कभी इतिहास में, कभी बहुत सालों में इस तरह की सिचुएशन ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर आई नहीं है, ठीक है। सो बी सेफ ऑलवेज, टेक केयर एंड बी रेगुलर इन योर क्लासेस, ओके। नाउ the Moodle administrator will tell you everything about the institution Moodle, but some details are available here also. All the students have to register on the Moodle. They will create their own login. उसी पे आपका सब कुछ होगा, आपका क्विज भी होगा, यू विल गेट द लेक्चर्स के पीपीटीज, लेक्चर्स के नोट्स, सभी कुछ टीचर्स का जो भी मैटर होगा, असाइनमेंट्स, क्विज, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द Moodle. तो ड्यूरिंग योर इंडक्शन प्रोग्राम विच विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, which will start from first, actually you will get training in all these things. मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि be attentive, सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, अपने पास एक डायरी रखिए, एक नोटबुक रखिए, उसमें हर चीज़ लिखते जाइए जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती है, so that you can, क्योंकि आपका फ्यूचर है बच्चे लोग और वो आपके हाथों में है। हम लोगों की तरफ से अब इस समय हम इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाएंगे, तो आपको और आपके पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। बाद में आप कंप्लेंट करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, चिड़िया चुग गई होगी खेत, समय हाथ से निकल जाएगा, समय से कीमती कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज अटेंड एज मेनी क्लासेस एज पॉसिबल, बट वॉच ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ लेक्चर्स विच आर शेयर्ड टू यू, appear for weekly quizzes, all quizzes, submit your assignments online and attend additional classes. एंड जो भी आपको कहना है वो आप अपने टीचर से उस पीरियड में कह सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप वगैरह पे तो आप कह ही सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 2 मिड सेमेस्टर टेस्ट विच टेक प्लेस। क्विज तो आपका हर वीक होगा और मिड सेमेस्टर 2 होंगे। आपका एकेडमिक कैलेंडर रेडी है तो आप प्लीज़ अपना एकेडमिक कैलेंडर सामने रख लिया करिए। इट विल वर्क एज ए गाइडिंग टूल फॉर यू, इट विल कीप गाइडिंग यू, आपको प्लान करने में हेल्प मिलेगी उससे। कभी कभी 1-2 दिन इधर उधर हो सकते हैं, बट मोस्टली MITS हैज़ बीन फॉलोइंग द एकेडमिक कैलेंडर very you can say religiously, except corona has slightly shifted certain things, okay. So आपको 2 मिड सेमेस्टर टेस्ट कंपल्सरीली देना है। 20 मार्क्स का वेटेज आपके
हर कोर्स का मिड सेमेस्टर से होगा। 2 मिड सेमेस्टर टेस्ट का जो एवरेज होगा वो आपके 20 मार्क्स का वेटेज होगा। सो ये आपको ज़रूर देना है। स्कूल्स में भी शायद यूनिट टेस्ट वगैरह होते होंगे सिमिलरली। अब मान लीजिए 2 टेस्ट कंपलसरी हैं, कोई बच्चा किसी कारण से एक टेस्ट उसमें से नहीं दे पाता है, तो देन ही हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज कोऑर्डिनेटर और हिज head of the department, and then for such students, only for such students, a third mid-semester examination is also conducted. Okay, then I have already told you that there will be remedial classes, bridge classes. Okay, some students are not able to follow, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, कोई 12th में थोड़ा वीक होता है, लेकिन बच्चे लोग इसको बिल्कुल कोई हर्डल मत बनने दीजिए। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि जो 12th में बहुत लो परसेंटेज पे बच्चे यहाँ आए हैं एंड दे हैव एक्सेल्ड इन MITS। इन इंजीनियरिंग कॉलेज आपको सिर्फ रेगुलर रहना है, सिर्फ आपको रेगुलर रहना है। इफ़ यू अटेंड ऑल द क्लासेस प्रॉपरली, इफ़ यू आर इन टच विथ योर टीचर्स एंड वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड बाय योर फैकल्टी मेंबर्स, इफ़ यू आर डूइंग दैट, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट होता क्या है कि यहाँ आके सब रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई अब इंजीनियर बन गए, अब तो घुस गए हैं कॉलेज में तो बन ही जाएंगे। दे डोंट स्टडी, एंड इफ़ यू डोंट स्टडी देन आपके बैकलॉग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको लगता है ये सब तो बहुत ईजी है, ये तो मैं कर ही लूँगा, एवरीथिंग इज़ देयर, पूरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पूरे नोट्स अवेलेबल है, एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ लूंगा। तो आई विल लाइक टू टेल यू दैट आपको एग्जाम के टाइम प्रोबेबली कोई भी गैप वगैरह नहीं मिलेगा। आप लोगों को मिलेगा ही आपका एकेडमिक कैलेंडर, तो आप देखेंगे कि बिकॉज वी हैव टू सेव योर टाइम, अदरवाइज आपका साल बर्बाद हो जाएगा अगर हम ऐसे लेट चलेंगे तो। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर एवरी डे। प्लीज फाइंड टाइम इन द नाइट और एट सम टाइम, देन यू स्टडी फॉर 1 or 2 hours every day, and then everything will be perfectly okay for you. Now फॉर आपको डिग्री कैसे मिलती है यूजी की किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या कंप्यूटर साइंस में, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग अ डिग्री। ओके, तो आपको ना बीटेक के लिए 160 टोटल क्रेडिट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ लो 160 टोटल क्रेडिट्स जब आप अर्न करते हैं, देन यू गेट अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सम डिपार्टमेंट। ओके, सम ब्रांच जो आपकी होती है। ठीक है, ये क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट पे आइए। दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बीटेक विथ ऑनर्स, पहले ऑनर्स का मतलब होता था जिनके 75% से ज़्यादा नंबर आते थे, बट नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज। सो द स्टूडेंट्स जो सिर्फ बीटेक करके सेटिस्फाइड हैं, दे विल अर्न ओनली 160 क्रेडिट्स। The students who want to pass with honors, you see, they are good students, they want to do honors also. So उनको 20 एडिशनल क्रेडिट्स करने पड़ेंगे, और ये 20 एडिशनल क्रेडिट्स उनको 5वें सेमेस्टर के बाद से मिलेंगे। तो 4 सेमेस्टर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपके वो स्टार्ट होते जाएंगे 5वें में, 6ठे में, 7वें में और 8वें में। सो यू विल गेट 4 सेमेस्टर्स 5वें से लेके, जब आपको ये 20 क्रेडिट्स करने हैं। इफ यू डू दोज 20 क्रेडिट्स in the courses of the parent department, suppose you are a civil engineer, so if you do the courses from civil engineering side, then you get a BTech with honors in civil engineering. Similarly for all other branches. Okay, now तीसरी रो पे आ जाइए, बीटेक विथ माइनर स्पेशलाइजेशन इन एलाइड डिपार्टमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है जो आपसे 2017 के बाद में जो बच्चे एडमिट हुए हैं हमारे यहाँ MITS में, सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, और अभी बाकी मध्य प्रदेश में और किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये माइनर स्पेशलाइजेशन का प्रोविज़न नहीं है। सो अच्छे बच्चे लोग जो हैं, अभी से आप प्लान कर लीजिए। इफ़ यू वांट, देन यू कैन डू अ माइनर स्पेशलाइजेशन इन सम एलाइड डिपार्टमेंट, मीनिंग फॉर एग्जांपल बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग बट माइनर स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो all those who were interested in getting a certain branch but could not get that branch have got a chance here. Suppose आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, पर आपको ब्रांच कौन सी मिली? मैकेनिकल। तो यू कैन डू मैकेनिकल विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में, बिट्स पिलानी में, सम अदर इंस्टीट्यूशंस हैव दिस प्रोविजन, बट मध्य प्रदेश में अभी हमने पहला ही ये स्टार्ट किया हुआ है। सो MITS गिव्स यू दिस प्रोविजन, बट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। और एक्सक्यूजेस बनाना बंद करिए।
स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अगर आप एक्सक्यूज बनाते हैं तो वो सिर्फ आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया किसी के लिए रुकेगी नहीं, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। जो आज आप पढ़ के जाएंगे वो कल पुराना हो जाएगा। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स हैव टू लर्न टू बिकम सेल्फ लर्नर्स, and MITS is giving them lots of opportunities to become self learners. I will tell you about that, but ये वाला कैच वर्ड याद रखिए, सेल्फ लर्निंग, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पढ़ा हुआ कई चीज़ें पुरानी हो गई होंगी। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस कट थ्रोट वर्ल्ड, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप सुनते ही होंगे कितने सारे लोगों को ले ऑफ कर देते हैं जॉब से, बिना जॉब के हो जाते हैं। तो सभी लोग तो खैर इस वजह से नहीं होते हैं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, देर आर मेनी रीजंस, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ, ऑलवेज कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। एंड हाउ टू डू दैट? MITS plans to make you self-learner. How? We'll discuss that, okay? So far आपको ये बता दें कि आपकी अपनी मनपसंद ब्रांच ना मिली हो तो कोई बात नहीं है, आप ये 20 एडिशनल क्रेडिट्स अभी से प्लान कर लीजिए। तो 5वें से लेके 8वें तक 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखिए, बिल गेट्स से लेकर एक जो बाहर मजदूर गड्ढे खोद रहा है, सबके पास घंटे तो बच्चों 24 ही होते हैं दिन में, है ना? तो उन्हीं 24, आपकी क्लास के टॉपर के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, या जो बच्चा 10 लाख 15 लाख का पैकेज लेके यहाँ से निकलता है उसके पास भी 24 ही घंटे हैं, और जो बच्चा फाइनल ईयर में पहुँच के जिसके 5 सब्जेक्ट में फेल होता है उसके पास भी उतने ही घंटे हैं। सो दैट मीन्स देर इज समथिंग, वही टीचर्स है, वही इंस्टीट्यूशन है, और दिमाग किसी के पास कम नहीं है जो भी बच्चा यहाँ आया है। अगर आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है तो पहली बात तो समझ लीजिए कि यू हैव समथिंग इन यू, यू हैव सम एप्टीट्यूड, यू हैव सम स्किल्स, जिसकी वजह से आपका यहाँ एडमिशन हुआ है। अपने कॉलेज में कोई पैसे देके तो एडमिशन होता नहीं है ना, यहाँ पे यू ऑल नो DT अपना डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से होता है। सो आपके मेरिट बेसिस पे सबका हुआ है, दैट मीन्स यू हैव मेरिट, और मेरिट इतने इतने से नंबरों पे 1 से लेके 1000 की रैंक हो जाती है। तो अगर आपकी रैंक पीछे है या कुछ है, नेवर गेट डिमोरलाइज्ड, समझिए कि भगवान ने आपको एक नया चांस दिया है। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। जब आंख खुले तभी सवेरा समझो, जस्ट वेक अप, वेक अप, वेक अप, टेक, grab actually all the opportunities which the new institution is offering you, the faculty is offering you. Be interactive with the faculty, the management and administration. आपकी जो भी इश्यूज हैं, जो प्रॉपर अच्छा फीडबैक है वो हमें ज़रूर दीजिए, सो दैट वी इम्प्रूव फर्दर। क्योंकि आपके एंगल से जो चीज़ दिख रही है वो हमें नहीं दिखती है, समझ लीजिए ये बात। आपकी तरफ से सब अलग दिखेगा, हमारी तरफ से सब अलग दिखेगा। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट एस्पिरेशंस। सो वी नीड योर फीडबैक कॉन्स्टेंटली, फीडबैक विच इज़ गिवन इन ऑन द राइट प्लेटफॉर्म इन द राइट मैनर। वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि हाउ यू हैव टू गिव। सिमिलरली फॉर आर्किटेक्चर कोर्स, आर्किटेक्चर इज़ अ 5-year कोर्स एंड दे हैव टू अर्न 260 credits, and for getting an honors they have to get 24 credits. माइनर स्पेशलाइजेशन का एज ऑफ नाउ आर्किटेक्चर में कोई प्रोविजन नहीं है। सो सिर्फ ऑनर्स ही है विथ 24 एडिशनल क्रेडिट्स। आप जो हैं वो 160 + 20 क्रेडिट्स लेकर माइनर कर सकते हैं। अगर आप 20 क्रेडिट्स कंप्यूटर साइंस के करते हैं एडिशनल क्रेडिट, तो यू गेट अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस। इफ यू डू 20 क्रेडिट्स फ्रॉम सम अदर ब्रांच IT, then you get a minor in information technology. So I think that is clear to you. Now these are some of the terms and some of the variables which will be coming again and again. So you can refer here also. L means lecture. I'll not read everything, but ये red में जो है DC means departmental core subject. मतलब आपके वो वाले सब्जेक्ट जो आपके डिपार्टमेंट के कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिनको पढ़े बिना आप उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। देन देर आर डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्सेज, इलेक्टिव में आप चूज कर सकते हैं। देर आर नॉर्मली 5 इलेक्टिव कोर्सेज पूरे 8 सेमेस्टर्स में, 5 इलेक्टिव कोर्सेज हैं जो छठे सेमेस्टर से स्टार्ट होते हैं। तो 5 जो इलेक्टिव हैं उसमें आपको 5 इलेक्टिव करने हैं, बट प्रत्येक इलेक्टिव में आपको 3 सब्जेक्ट की चॉइस मिलेगी। सो आप उन 3 में से या 4 में से या 2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या है, ये हम कह सकते हैं कि थाली सिस्टम नहीं है MITS में कि जहाँ जो थाली में परोसा गया वो खा लो।
इट इज कैफेटेरिया सिस्टम, मेन्यू सिस्टम, यू कैन ऑर्डर. सो अभी से आप अपनी अवेयरनेस रखिए कि हम इलेक्टिव में क्या पढ़ना चाहते हैं. आपसे फीडबैक लिया जाएगा, तो यू मस्ट टेल व्हाट यू वांट टू स्टडी. बाद में किसी को ब्लेम मत करिए कि मुझे तो ये पढ़ना था बट ये प्रोवाइड ही नहीं कराया गया कॉलेज ने, और वो आप सोते रहेंगे. इफ़ यू आर कॉट नैपिंग, सो यू नो द ट्रेन विल लीव. बस छूट जाएगी आपकी या ट्रेन छूट जाएगी. सो इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में अवेयरनेस रखिए. सिमिलरली देर आर 5 कोर्सेज विच आर ओपन कैटेगरी कोर्सेज. ये कोर्सेज माइनर वगैरह को छोड़ दीजिए, ये ओपन कोर्सेज भी आप कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या सिविल से, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका एडमिशन किसी एक ब्रांच में हुआ है, तो दूसरी ब्रांच के 5 कोर्सेज आप ओपन कोर्सेज में पढ़ सकते हैं. एंड हियर ऑल्सो यू विल हैव द चॉइस. यू सी, MITS empowers you to select your own courses. We don't have fixed courses. Only departmental core courses are fixed. Electives, you have to choose as per your career goals, as per your interests. तो आपको चूज करना है. उसमें ये मत बोलिए कि अरे मेरा बच्चा पड़ोस वाला स्टूडेंट जो है वो ये भर रहा था तो मैंने भी ये भर दिया. प्लीज बी अवेयर. आज के युग में जब इतना डिजिटाइजेशन है, IT क्रांति है, तो कोई बच्चा बोले कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, वो नहीं चलेगा. तो सबसे पहले एक्चुअली आई शुड हैव टोल्ड यू कि कॉलेज की वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करिए. बाकी भी चीज़ें रेगुलरली आप अपने आप को अपडेटेड रखिए. अगर आप अपडेटेड नहीं, आपको मेल भेजे जाते हैं, मूडल पे आपको अलर्ट्स आते हैं, अगर आप उसको अपना फ़ोन नंबर सही रखिए, अपना मोबाइल नंबर सही रखिए, अपना ईमेल ID ठीक रखिए, यहाँ पे अटेंटिव अलर्ट बने रहिए ऑलवेज. इफ़ यू आर नॉट, देन यू विल लूज, बिकॉज थिंग्स आर वेरी वेरी फास्ट चेंजिंग. यू कैन नॉट से कि वो पिछले साल के बच्चे से, जो पिछले साल था सब अभी, जो आपके जो सीनियर बैच का जो सिलेबस था उससे अभी ही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. उनके 170 क्रेडिट से आपके हमने क्रेडिट भी कम कर दिए हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू अनबर्डन यू. क्रेडिट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है. सो DLC इज अ डिपार्टमेंटल लेबोरेटरी कोर्स. देन देर आर सर्टन मैंडेटरी कोर्सेज विच ऑल ब्रांच स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी. फिर साइंस के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज के, ह्यूमैनिटीज़ के, मैनेजमेंट टाइप के, इकोनॉमिक्स टाइप के, एथिक्स, सब टाइप के कोर्सेज हैं. और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि आपसे जब आप यहाँ से पास आउट होंगे तो एज ए इंजीनियर आपसे क्या उम्मीद है सोसाइटी को, आपके एम्प्लॉयर्स को. अल्टीमेटली इंजीनियरिंग हमने विजन हमारा जो था वो क्या था, यू हैव टू, आपकी एजुकेशन पे, सब चीज़ों पे गवर्नमेंट भी बहुत कुछ स्पेंड करती है. जितनी फीस हम देते हैं आप ये भी समझ लीजिए कि उसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नहीं चलता है. इन इंडिया एजुकेशन इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड. सो यू हैव टू रिटर्न बैक टू सोसाइटी. नेवर फॉरगेट दैट. यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर पेरेंट्स जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं, आपकी फीस भर रहे हैं. सो आप ये नहीं समझ के आ जाइए कि आके अब यहाँ पे आकर बिल्कुल फैल के बैठ गए कि नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल. यू हैव टू बी अलर्ट. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा टेंशन में रहें कि मैडम ने तो बोला है कि ये भी करना है वो भी करना है. नो, वी वॉन्ट यू टू बी रिलैक्स्ड. यू मैनेज योर टाइम वेल, दैट्स ऑल. मैनेज योर टाइम. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा जब आप जॉब में जाएंगे. सिमिलरली ये कुछ एक्रोनिम्स हैं, स्वयं, NPTEL, मूक, इंटर्नशिप वगैरह, ये सब आपको बार बार जगह जगह वैल्यू एडेड कोर्सेज ये बार बार आपको सुनने में आएंगे. तो स्वयं जो है, जो मैंने आपको कहा था कि आज की तारीख में गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि वी हैव टू मेक स्टूडेंट्स, प्रिपेयर स्टूडेंट्स हु आर सेल्फ लर्नर्स. तो स्वयं का मतलब क्या होता है हिंदी में? खुद. तो खुद लर्न करना सीखना है आपको. उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्वयं प्लेटफॉर्म है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा. NPTEL जो है वो स्वयं की ही विंग है जो इंजीनियरिंग वालों के लिए है. स्वयं और NPTEL एक जैसे ही हैं. NPTEL क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग. तो दिस इज एन एक्रोनिम, एज यू कैन सी, NPTEL. इनको क्या कहते हैं? एक्रोनिम. ठीक है. सो NPTEL, आप हमारे इंस्टीट्यूशन में NPTEL का चैप्टर है. जो NPTEL के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आपको सेपरेटली एड्रेस करेंगे. जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें और डिटेल में बताई जाएंगी. आई एम ओनली हियर टू गिव यू एन ओवरव्यू एंड गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर कि कोई भी चीज़, हमेशा बच्चे लोग ये ज़रूर पूछो कि कोई चीज़ हो रही है, कोई कोर्स मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है.
If I am doing something, why am I doing it? Is it only for earning marks? Is it only for getting degree? No. आप लोगों ने 3 Idiots देखी होगी, देखी है ना सबने. डिग्री के लिए पढ़ना इज नॉट पढ़ना. पढ़ना ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के आप सच में कुछ कर सकें, कुछ आप एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. बस बैठ के अपनी चेयर पे बैठ के सैलरी लेने के लिए हम नहीं आपको डिग्री दे रहे हैं. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स. अब व्हाट इज क्रेडिट. ओके, मैंने बार बार आपसे कह रही हूं कि 160 क्रेडिट, 160 क्रेडिट्स इफ यू कंप्लीट, देन यू गेट अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग. तो 1 क्रेडिट, हाउ इज क्रेडिट कैलकुलेटेड? यू सी, 1 hour ऑफ लेक्चर पर वीक मीन्स 1 क्रेडिट. अभी मैंने आपको बताया था ना कि 3 लेक्चर्स पर वीक है हर कोर्स के, तो दैट मीन्स आपके प्रत्येक कोर्स के करीब 3 क्रेडिट्स हैं. ठीक है. 3 क्रेडिट्स मतलब 3 लेक्चर या 3 क्लासेस आपकी 1-1 घंटे की होंगी एक हफ्ते में पर वीक. सिमिलरली 1 ट्यूटोरियल क्लास. ट्यूटोरियल is extension of a lecture where you apply what you have learned. आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप कोडिंग करते हैं, वो सब ट्यूटोरियल है. सो एक ट्यूटोरियल का 1 घंटा 1 क्रेडिट के बराबर होता है. लैब के 2 घंटे, 2 hours ऑफ प्रैक्टिकल और लैब इज इक्वल टू 1 क्रेडिट. क्योंकि लैब में जब आप 2 घंटे बिताते हैं तब आप कुछ अचीव कर पाते हैं. 1 घंटे में तो आप कनेक्शंस ही नहीं कर पाएंगे इक्विपमेंट्स के. ठीक है. सो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको याद रखिएगा, और इसका मतलब क्रेडिट क्या है ये आप समझ जाएंगे. ठीक है. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अर्न दीज 160 मैंडेटरी क्रेडिट्स? हाउ आर यू गोइंग टू लर्न? व्हाट आर गोइंग टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ दोज 160 क्रेडिट्स? तो नंबर 1, जैसे मैंने कहा, देयर विल बी सर्टन थ्योरी एंड लैब कोर्सेज. कोर्सेज में आपके डिपार्टमेंटल कोर, मैंने अभी बताया था, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव्स एंड ओपन इलेक्टिव्स. ठीक है. तो डिपार्टमेंटल कोर और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्सेज होंगे जो आप डिपार्टमेंट से चूज करेंगे, और ओपन कैटेगरी यू विल सिलेक्ट फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट. तो ये आपको चॉइस है. देखिए, दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग. यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज विच वन आई वांट टू स्टडी. ओके. सेकेंडली, you have got mandatory internships. डिग्री करने के लिए you are required to do, as per the All India Council of Technical Education norms, you have to do 3 mandatory internships, out of which the first internship will be after your first year. ठीक है. This is conducted in house, institution में ही हम कराते हैं उसको. इंटर्नशिप का मतलब होता है you get some kind of work experience, you do something hands on. ओके. पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन भी किया था. देन देर इज मैंडेटरी इंटर्नशिप आफ्टर 2nd ईयर. ये भी हम लोग इन हाउस कराते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं. सो वी ट्राई टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स इन स्टूडेंट्स. थर्ड इज मैंडेटरी इंटर्नशिप आफ्टर 2nd ईयर. 2nd ईयर पास करने के बाद जब आप जाते हैं समर वेकेशन में, नॉर्मली ये समर या विंटर वेकेशन में होती हैं इंटर्नशिप्स, जब आपकी क्लासेस नहीं हो रही होती हैं. So this you have to do in some relevant industry, the industry which is certified for internship by your training placement cell or by your department. ठीक है. तो पहला हो गया कि you have to do certain number of courses. Second, you have to do 3 mandatory internships. Number 3 is, because we want to make you self-learners, you have to do some mandatory online courses from the Swayam NPTEL platform. और ये आपका 6th सेमेस्टर से स्टार्ट होता है. 160 के 20% क्रेडिट्स. ठीक है. 20% क्रेडिट्स ऑफ 160 आर टू बी अर्नड फ्रॉम योर मूक्स. तो ये आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे मूक के, ये भी मैंडेटरी रहेगा. इसके लिए आपको टाइम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. हमारा NPTEL चैप्टर एग्जिस्ट करता है, वो आपको गाइड करेगा, आपके स्वयं के कोऑर्डिनेटर गाइड करेंगे. पर ये आपका 6ठे सेमेस्टर से स्टार्ट होगा फॉर क्रेडिट ट्रांसफर. तो आप क्या करेंगे? ऑनलाइन कोर्स करेंगे, और जो क्रेडिट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ आपकी मार्कशीट में ऐड होंगे. सो आप अपने घर पे बैठकर सेल्फ लर्निंग से, और ये सारे कोर्सेज जो हैं, दीज मूक कोर्सेज आर नॉर्मली ऑफर्ड बाय वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, IITs, NITs. दोज फैकल्टी हैव डेवलप्ड देयर मूक्स, एंड MITS में बैठे बैठे यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ देयर नॉलेज, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, बाय डूइंग दीज मूक कोर्सेज. The registration for these courses is totally free.
These courses are normally for 8 week or 12 week. Most common is 8 week या 12 week. तो वो इनका भी weekly module होता है. So if there is a 12 week course, registration is free. You can learn पूरा free में 12 week आप पढ़ सकते हैं और अपने notes बना सकते हैं, download कर सकते हैं lectures को उनके, ठीक है. But if you want to earn a certificate, जो कि यहाँ mandatory है आपके लिए, 20% credits mandatory हैं, ठीक है. So 20% credits earn करने के लिए 20% of 160, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए कराना पड़ेगा. आपके सिटी में कहीं वो एक प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन का सेंटर होगा, जैसे आप जेई वगैरह देने जाते थे, तो देयर विल बी एन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द NPTEL. व्हेन यू डू दैट, दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट. हमारे कॉलेज के बच्चे उसमें टॉपर भी हैं, वो आपको स्वयं वाले बताएंगे. ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, ऑल इंडिया 1% टॉपर्स हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, एलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं. सो द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल. इफ यू डू वेल, then the MITS NPTEL chapter gets a very good national rank. So एक बार हम लोगों की बेस्ट रैंक 29th भी आ चुकी है ऑल इंडिया में MITS NPTEL चैप्टर की, ठीक है. सो आपके परफॉर्मेंस से, और आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं वो करना, अभी भी कर सकते हैं, बट 6 सेमेस्टर से कुछ कोर्सेज आपके लिए मैंडेटरी होंगे, ठीक है. इज इट क्लियर? रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन आस्क your Swayam coordinators and your departments will tell you. Number 4 is co-curricular activities. For all-round development of an engineer, it is necessary that the person has got many skills. You know, a student can be a topper, but he can miserably fail when he joins a job. He can just completely fail because he doesn't have many other skills. जो एम्प्लॉयमेंट सर्वेज होते हैं उसमें उनका कहना है कि ओनली 40% सक्सेस रेट या जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी, ओनली 40% इज डिपेंडेंट ऑन योर नॉलेज या योर ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन. रेस्ट ऑफ द 60% इज ऑन योर स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, 30% टेक्निकल स्किल्स एंड 30% वेटेज इज गिवन टू योर सॉफ्ट स्किल्स. तो ये सॉफ्ट स्किल्स एक शब्द है जो आप में से जो भी फेमिलियर नहीं है वो गूगल कर लीजिए. और सॉफ्ट स्किल्स अपने कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू, बट मोटिवेशन हैज़ टू कम फ्रॉम यू. सो 40% नॉलेज, 30% प्रैक्टिकल स्किल्स एंड 30% सॉफ्ट स्किल्स किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए, नॉट ओनली इंजीनियर, चाहे वो टैक्सी क्यों ना चलाता हो, टैक्सी ड्राइवर क्यों ना हो, उसको आप उबर में, ओला में बैठते हैं तो 5 स्टार देते हैं क्या अगर वो बदतमीज़ है, अगर उसने आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, आपकी सूटकेस आप उठा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको हेल्प नहीं की, सो आप देते हैं क्या? नहीं देते ना. सो वो एक दूसरे को हेल्प करना, एटीट्यूड, जो एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड शो करता है, दैट पर्सन सक्सीड्स इन लाइफ ऑलवेज. ओके, सो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन द 8th semester you will get 2 credits. You will earn 2 credits based on professional development course. There is a course on professional development. इसका evaluation कैसे होगा? It will be evaluated based on आप कितने क्लब्स के मेंबर हैं, कितने क्लब्स में आपने क्या क्या, मैं उसका फॉर्मेट आपको दिखा दूंगी. तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर, इट इज विजिबल, ठीक है. सो यू मस्ट गेट इन्वॉल्व, भले ही आप ऑनलाइन हैं अभी, बट यू मस्ट ट्राई to get involved in all the activities of the institution. There will be different types of activities, there will be cultural activities, there will be debates, there will be technical quizzes, there will be hackathons. वो सब आपको डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने कुछ कुछ बताया होगा, बाकी भी कोई कोई आपको और आगे का बता देगा. पर आपका ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू विल अर्न क्रेडिट्स इन 8th semester फॉर दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्कीम. ये स्कीम आपको डिपार्टमेंट्स देंगे. ये सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल है जो हम बता रहे हैं कि कितने क्रेडिट किस चीज़ के हैं आपके. डिपार्टमेंटल कोर के कितने क्रेडिट्स हैं, इलेक्टिव के कितने क्रेडिट्स हैं, एंड सो ऑन. Okay, so this is all will be told by the department. In the first semester you have 19 credits, in the second semester you again have 90, then 20, 20, 21, 21, ऐसे आपके total 160 credits हो जाएंगे. ये स्कीम है, देखिए. I will just, ये just एक सैम्पल स्कीम है, ऊपर लिखा हुआ है. किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे की स्कीम नहीं है ये, दिस इज अ सैम्पल स्कीम.
ओके। अगर आप स्कीम को देखिए, पहले कॉलम में एक यूनिक सब्जेक्ट कोड होगा, इसमें वो यूनिक होगा हर कोर्स का। दूसरे में कोर्स का नाम लिखा है। फिर आप देखिए थ्योरी स्लॉट है और प्रैक्टिकल स्लॉट है। थ्योरी स्लॉट के 100 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 60 20 20। 60 मार्क्स, ओनली 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 आर फॉर योर एंड सेमेस्टर रिटन थ्योरी एग्जामिनेशन। 20 मार्क्स आर मिड सेमेस्टर। तो मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन फॉर यू। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिस दिन से आप आते हैं आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। You have to be regular, you have to study regularly. 20 marks are for mid semester. Then 20 marks are for quiz, assignment and projects। जो आपको छोटे छोटे टीचर अगर कोई असाइनमेंट टाइप के देता है, कुछ प्रोजेक्ट्स देता है, तो 20 मार्क्स उसके रहेंगे आपके हर कोर्स के लिए। आप देखिए रोज को देखिए, रो वाइज देखिए। सो फॉर एवरी कोर्स यू विल फॉलो। जिस कोर्स में लैब है, जैसे इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स में लैब है, मैथ्स में तो लैब नहीं होती, तो लैब कोर्स में भी 2 स्लॉट्स है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 60 नंबर हैं, और लैब वर्क जो आप करते हैं, अपना जर्नल बनाते हैं, लैब में क्या काम करते हैं, किस तरह से लैब को कंडक्ट करते हैं आप अपनी, उसके 40 मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके आगे आप देखिए कॉन्टैक्ट आवर्स पर वीक लिखा हुआ है। ठीक है, LTP, L मतलब लेक्चर, T मतलब ट्यूटोरियल, P मतलब प्रैक्टिकल। सो हाउ मेनी आवर्स यू विल बी स्पेंडिंग, लाइक फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स L के नीचे लिखा है 3, मीन्स यू विल हैव 3 आवर्स क्लास इन अ वीक, पर वीक। यू विल हैव 1 आवर ट्यूटोरियल एंड देयर इज नो प्रैक्टिकल। ठीक है, इन फिजिक्स यू विल हैव 2 लेक्चर्स पर वीक एंड 1 ट्यूटोरियल, तो मतलब मिला के 3 ही हो जाएंगे, एंड यू विल हैव 2 आवर्स लैब। ओके, सो इन दिस वे ये क्रेडिट्स आपके, मैंने क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होते हैं पहले ही बता दिया था। सो आपके 19 क्रेडिट इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, टोटल क्रेडिट 3 + 1। प्रैक्टिकल का क्रेडिट आधा हो जाता है। प्रैक्टिकल में अगर 2 पीरियड हैं, 2 क्लासेस हैं 2 घंटे की, तो क्रेडिट 1 ही होता है। दिस इज सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर स्कीम। ओके, नाउ मैंने आपको पहले ही एडिशनल क्रेडिट्स के बारे में बता दिया है एंड स्वयं के बारे में भी बताया है। हियर वी आर एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट यू कैन डू बाय अर्निंग 20 एडिशनल क्रेडिट्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स हु हैव कम टू MITS इन 2020 are all very good students, and if given proper opportunity they will all pass out with flying colors and they will bring laurels to the institution. And we assume that you will not satisfy yourself only with 160 credits, but you will try to earn something extra. You will try to learn new things. You will try to learn updated courses from IITs, NITs, and you will become self-learners, and when you join your jobs, you will be highly successful there. तो आपको 20 क्रेडिट्स के लिए इसमें नीचे हमने बताया है कि you have to earn 20 additional credits from MOOCs. जो 20% है वो अलग है, वो 160 का 20% आप करते हैं। ठीक है, वो अलग है, वो क्रेडिट्स अलग हैं. These are additional credits other than 160. If you earn 20 credits from allied departments, तो you get minor specialization. If you earn 20 credits, ये 5th semester onward होता है, from your parent department जहाँ आपका admission हुआ है, then you get honors. तो same चीज़ है, that this has been told again. Okay? So now this is all the same thing. You can go on, you can read about it. Okay? So you can get 34 credits या about 20% credits actually from MOOCs. उतना प्रोविजन है. सुना है कि गवर्नमेंट उसको 40% करने जा रही है. और एक चीज़ और है कि जो MITS में अभी पढ़ाई आपकी होगी वो एक तरह से MOOC ही है, बिकॉज वी आर ऑल्सो अगेन गिविंग यू, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं. ओनली थिंग इज़ कि आप उधर उस साइड से इंटरैक्टिव क्लास में यू कैन be available, you can ask questions in the chat box, you can record your own attendance in the Moodle during the live class. Okay, so welcome all of you. I hope that you will attend the classes as much as possible. ठीक है, so this was all about, we call this flexible curriculum because you see there is flexibility. You have you can choose your own courses, you can choose elective courses जो आपको पढ़ना है. You can choose open credits, open courses. So you have lot of choice here. You can choose which branch you want to do minors. तो आप क्या क्या चूज कर सकते हैं? आप डिपार्टमेंटल इलेक्टिव खुद चूज कर सकते हैं. Of course department will give a guideline. ऐसे नहीं मैं कुछ भी पढ़ूंगा. Departments will give you a guideline, a pool of courses. So you can choose departmental electives yourself.
Then you can choose electives from other departments. और 5 courses, mind you, 5 courses हैं ऐसे, 5 open courses हैं which you can choose from other departments. What else you can choose? You can choose the faculty in which you want to do minor specialization. आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अभी से फोकस हो जाइए. कोरोना टाइम्स है, इधर उधर बाहर तो आप वैसे भी कोई ज्यादा नहीं घूम पा रहा है, ठीक है. सो अभी से फोकस कर लीजिए, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करिए, अपनी आंखें मत फोड़िए, आंखों में से पानी निकल रहा है ऐसे बैठे. नॉट लाइक दैट. You have to optimize your efforts and get maximum benefits from everything. ठीक है. So you can choose this also. Then again you can choose which clubs to join. अभी आपको बताया जाएगा. MITS has large number of technical, cultural and other clubs. And they conduct lots of activities even during the corona period. उन्होंने जो जो possibility थी online activities भी उन्होंने conduct कराई हैं बहुत सारी. अदरवाइज द कैंपस हैज़ गॉट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट. अगर आप एडमिशन के टाइम आए होंगे तो आपने देखा होगा वी हैव गॉट अ वेरी ग्रीन एंड वेरी गुड कैंपस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीकॉक्स एंड लार्ज नंबर ऑफ द इकोसिस्टम इज़ वेरी वेरी गुड हियर एंड यू कैन एंजॉय द फ्रेश वेदर. जैसे ही आप अंदर आते हैं तो एयर की क्वालिटी ही बदल जाती है MITS के अंदर आते साथ ही. आई होप आप लोग बहुत जल्दी कैंपस में आएंगे, और जब कैंपस में आएंगे तो आप यहाँ का एम्बियंस देखेंगे. You will yourself create that ambience. You are yourself going to create. Students ही institute है. Faculty कितनी होती है? 300 या 400 लोग हैं staff और faculty. And how many students are there? In one batch, we now have more than 1,000 students. You see, so more than 5,000-6,000 students. Okay? Then there are mandatory, but इसको तो आप choose नहीं कर सकते हैं. Then you can choose value-added courses also. किसी को Python सीखना है, किसी को कुछ और language सीखनी है. Please give your feedback. Then there are mandatory, वही points हैं which I have written here so that you understand. So there are value added courses, there are mandatory courses, there are internships, okay, which you can do. Then professional development मैंने आपको बताया था. Provision of internship, MITS में 8वें सेमेस्टर में पूरा 8वां सेमेस्टर आप किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं. अभी से आप किसी इंडस्ट्री से अपने लिंक्स बना सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट पीपल ऑनलाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू कैन गो फॉर होल 8th semester. Because in 8th semester we have only MOOCs. You don't have to come to the college. If you go and your attendance will also come from the industry or the research center जहाँ पर आप internship कर रहे होंगे. तो इससे क्या होगा, आप 6 महीने पहले ही मार्केट में पहुँच जाएंगे. क्योंकि अल्टीमेटली आप कर क्या पाते हैं उससे आपको नौकरी मिलती है. आपकी मार्कशीट पे कितने नंबर लिखे हैं उससे नहीं मिलती बच्चे. और करना कब सीखोगे, जब आप स्विमिंग पूल में कूदोगे तभी स्विमिंग सीखोगे. ओके, सो इंटर्नशिप्स आर वैल्यूएबल. दे शुड नेवर बी डन फॉर जस्ट फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट. हमेशा ट्राई टू लर्न समथिंग. तो 8th सेमेस्टर के लिए आप अभी से 3 मैंडेटरी इंटर्नशिप तो है ही है, और 8वें सेमेस्टर में जो बच्चे जाना चाहें वो जा सकते हैं किसी इंडस्ट्री में. बट ऑफ कोर्स दैट इंडस्ट्री हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय आवर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल, बाय द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स. एनी छोटी मोटी किसी भी उल्टी सीधी इंडस्ट्री में वी विल नॉट परमिट यू. It has to be, the industry should have a proper link and all that. Rest of the students can do a project here only in the institute, जो internship पे नहीं जाना चाहते हैं. ठीक है, तो वो 8वें सेमेस्टर में यहीं रह सकते हैं. ठीक है, ये सब उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है. यू कैन, आपने आराम से फुर्सत से बैठकर आप ये सब देख सकते हैं. अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यहाँ 1 क्रेडिट लिखा है, अभी हमने रिसेंटली उसको 2 क्रेडिट कर दिया है. ठीक है, देर आर अबाउट 50 डिफरेंट क्लब्स जो मैं आपको बता रही थी, और उन क्लब एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगी 8वें सेमेस्टर में. ठीक है, सो ये उसका फॉर्मेट है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट लेवल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो आपको हर पार्टिसिपेशन के 2 नंबर मिलेंगे और 6 नंबर मैक्सिमम होंगे. ठीक है, पार्टिसिपेशन के. ठीक है, स्टेट लेवल की किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे हर एक्टिविटी के. नेशनल लेवल की करते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे. और अगर आप कोई मूक्स करते हैं, कोई सर्टिफिकेट लेते हैं NPTEL से, आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं प्रॉक्टर्ड एग्जाम में, एंड यू गेट एन एडिशनल सर्टिफिकेट, देन यू विल गेट 10 मार्क्स.
And we are adding many other things also in this, जो अभी academic council meeting के बाद final हो जाएगा. So we will be adding, if you take any other lead, तो आपको सीधे 10 नंबर मिल जाएंगे. If you are a pioneer in starting any new practices for students, if your performance is extraordinary in extracurricular or co-curricular activities, then we'll इस लिस्ट को अभी, क्योंकि अभी पिछले साल ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ था 2017 बैच के लिए जो प्रेजेंटली फाइनल में है. फ्रॉम दिस बैच वी आर गोइंग टू चेंज दिस फॉर्मेट. इसमें आपके टोटल जो है मार्क्स निकल जाएंगे 50 में से, और क्रेडिट्स आपके 2 होंगे, इसमें 2 क्रेडिट्स. ओके, ये सब आपके चैप्टर्स हैं जो यहाँ पर हैं. इसकी लिस्ट आपको डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने दिखाई है. आई विल लाइक टू टेल यू, जो मैंने पहले कहा था कि एक इंजीनियर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंजीनियर. किसको हम अच्छा इंजीनियर बोलेंगे, ठीक है. सो दीज आर द 12 ग्लोबली एक्सेप्टेड एट्रीब्यूट्स which an engineer or an engineering graduate must learn during the 8 semesters of stay in the campus. इन पे आपको फोकस करना है. और जो भी कोई आपका इंटरव्यू लेने आएगा या आगे फ्यूचर में आपके प्रमोशंस होंगे, उनमें सबों में यही पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन होंगे. ये 12 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए. दीज आर कॉल्ड एज प्रोग्राम आउटकम्स. प्रोग्राम हो गया इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, दीज आर प्रोग्राम्स. सो व्हाट आर द आउटकम्स. प्रत्येक प्रोग्राम के आउटकम्स क्या होने चाहिए. नॉलेज तो है ही, इंजीनियरिंग नॉलेज, सबसे पहले तो नॉलेज ही है. सेकेंड पार्ट इज एनालिसिस. इंजीनियरिंग में चीज़ों को, जो मैंने आपको कहा था, बस पढ़ के चुप मत बैठिए, उसको एनालाइज करिए. एनालाइज ज़रूर करिए, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं ये ऐसे नहीं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, अगर ये वाली वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा. ऑल दिस कम्स अंडर एनालिसिस. जब आप आगे जाएंगे तो आप बॉस बनेंगे बहुत सारे लोगों के. इंजीनियर्स आर बॉसेस. So they will be expected to analyze so many things. So much of data will come to them. They will have to analyze and take decisions. So analysis is another very important outcome which a student must always focus on. Third is design and development of solutions. Design. Engineers को चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं. So you have to plan. डिज़ाइन में सब चीज़ें आ जाती है. कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. आपको अपने माइंड को, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता है. वी विल गिव यू ऑल द प्री रिक्विजिट्स, बट आपको बाद में अपना ही एफर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वी विल बी गिविंग यू लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो ट्राई टू डू द प्रोजेक्ट्स नॉट फ्रॉम कि किसी से हेल्प ले ली, कुछ कर लिया, बट ट्राई टू डू देम योर सेल्फ. योर लर्निंग फ्रॉम 2020 onwards is going, because new education policy has also been launched now in the country, NEP 2020, new education policy. So the learning is going to change from this batch. You are going to be a first batch. आपका बहुत सारा कुछ जो है वो first होने वाला है. पहले तो आप एक फर्स्ट बैच बन रहे हो जो ऐसे आ रहे हो कॉलेज में कि बिना कॉलेज में आए पढ़ रहे हो, कोरोना टाइम से. देन न्यू पॉलिसी स्टार्ट हो रही है. दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट फॉर यू. Then there are many other new initiatives which will be taken with you. जैसे we are going to start project based learning for you. We are going to start virtual laboratory based learning for you, which were not there till the previous batches. तो ये सब ideas कोविड में भी आए, गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस हैं, और सब लोगों का फीडबैक भी है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. तो कॉम्प्लेक्सिटी को देख के डरना नहीं है. आप इंजीनियर के पास सिंपल चीजें नहीं आएंगी. जब कोई गाड़ी अटकेगी तब आपके पास आएगा. तो यू हैव टू इंक्लूड कॉम्प्लेक्सिटी इन योर एल्गोरिथम्स, इन योर प्रोसेसेस. नेक्स्ट इज मॉडर्न टूल यूजेज. आपको जितने सॉफ्टवेयर टूल सीख सकते हो वो सीखने की कोशिश करनी है. दैट विल बी योर स्किल. जो मैंने कहा था ना, 40% नॉलेज, 30% स्किल, 30% सॉफ्ट स्किल, 30% टेक्निकल स्किल. तो टेक्निकल स्किल्स में ये सब आ जाएगा. नंबर 6 से देखिए, शुरू के जो 5 हैं जो रेड में बने हुए हैं, वो दे आर फोकस्ड और इंक्लाइन टुवर्ड्स योर डोमेन नॉलेज. ओके, मीन्स आपके फील्ड का, आपके डोमेन का, आपके इंजीनियरिंग फील्ड का रिलेटेड है वो सारा. छठे से आप देखिए तो
थोड़ा चेंज है. Engineer and society means you should be aware of your responsibilities towards society. You should have innovative ideas so that you change the life of society in some way. Some kind of innovation, some kind of new things, implementing new things, new ideas. And having a good attitude. हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, हर आदमी नया कुछ नहीं करता है. But having attitude is also very important. कि I want to help society. I want to do something. ठीक है. नेक्स्ट इज आज के इंजीनियर को एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सजग होना ज़रूरी है. हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट का क्या हाल हो रहा है. सो ऑल द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स शुड बी सस्टेनेबल ऑल्सो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव एथिकल नॉलेज. आपके पास एथिक्स होने चाहिए. हाउ टू बिहेव, वॉट इज गुड, then only you will be able to contribute in the society. तो ethics पे हम programs भी चलाते हैं, but ethics आपको बहुत कुछ आपके parents देते हैं, बहुत कुछ आप इधर उधर से देखते हैं, ठीक है ना. ethical conduct, but you must remember कि success finally ethics वालों को ही मिलती है. those who otherwise success is short lived if you take shortcuts. then individual and team work 9 नंबर पे ये बहुत ही important है. एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम. इंजीनियर्स कभी अलग काम नहीं करते, अकेले काम नहीं करते. तो आपको सबके साथ यू मस्ट गेट अलॉन्ग विद पीपल. ये नहीं कि मेरी इससे नहीं पड़ती, मेरी उससे नहीं पड़ती, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है. इफ़ यू डू लाइक दैट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वर्क इन अ टीम, देन यू विल बी थ्रोन आउट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और इन द जॉब मार्केट. आप चलोगे नहीं ज़्यादा दिन, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपको अपनी टीम में नहीं लेना चाहेगा. हम लोग ये सब चीज़ें आपको यहाँ सिखाएंगे. टीम स्पिरिट के लिए भी वी गिव यू ग्रुप प्रोजेक्ट्स सो दैट यू वर्क इन ग्रुप्स. अब ग्रुप प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का सारा काम करे, बाकी लोग बस खड़े रहें. नुकसान किसका होगा? बाकियों का. बाकियों का ही तो होगा. सो आप यहाँ नंबर लेने के लिए नहीं आए हैं, डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं. ये बात बस ध्यान रखिए. एंड दिस इज मोर ट्रू नाउ दैन इट यूज टू बी 3, 4, 5, 6 और 10 years ago. पहले डिग्री भी चलती थी बच्चे लोग. नाउ my dear students, now degree has no value. You know, so many degree holders are just, you know, इधर उधर ऐसे ही पड़े हुए हैं. ठीक है. नंबर 10 इज कम्युनिकेशन स्किल्स. वो तो है ही. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी ही आनी चाहिए. चाहे आप हिंदी में बोलिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना ज़रूरी है. और ये आप खुद भी दे सकते हैं, फैकल्टी आपकी मदद करेगी, बट आपको अपने भी प्रयास करने हैं. कोई सी भी भाषा हो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल. आगे आप जाओगे, आपको प्रेजेंटेशंस देने होंगे. यू शुड हैव गुड होल्ड, गुड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, बोथ रिटन एज वेल एज ओरल. तो आपका कम्युनिकेशन का या लैंग्वेज का एक कोर्स आप पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ एक कोर्स करने से ये चीज़ें नहीं आती हैं. यू हैव टू मेक अदर एफर्ट्स ऑल्सो. अंदर से इच्छा होनी चाहिए, विल होनी चाहिए. कहते ही हैं कि where there is a will, there is a way. Then I come to 11th point, lifelong learning. इसी के लिए हम इतना स्वयं NPTEL की बातें कर रहे हैं. बिकॉज आज के टाइम में ये जो 11वें नंबर पे लिखी हुई स्किल है, एक्चुअली ये नंबर 1 हो गई है. बाय द टाइम यू पास आउट, समटाइम्स वॉट यू हैव लर्नड हियर, sometimes in some courses has already become obsolete. आप देख ही रहे हैं आपके स्मार्टफोन कैसे तेज़ी से बदल रहे हैं. तो वैसी दुनिया भी बहुत जल्दी जल्दी स्मार्ट हो रही है. जो चीज़ें कुछ दिन पहले तक थी, वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाती है मार्केट से. सो यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड तब आपके टीचर्स नहीं होंगे, तब आपका इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तब आपको खुद ही अपनी कोशिश से सीखना होगा. सो वी आर गिविंग यू ट्रेनिंग फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है. लास्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फिनेंस. ये तो ऑफकोर्स एक इंजीनियर को, पर ये चीज़ें कुछ हद तक यहाँ सिखाई जाएंगी. बाकी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही वो सारा कुछ आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर डिवेलपिंग ऑल द प्रोसेसेस इन द इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन फीडबैक्स. We take feedback from our alumni, we take feedback from our employers, जो student के employers हैं, companies जो यहाँ आती हैं, we take feedback from faculty, we take feedback from students and their parents also. So all dear parents who are listening, या जो कोई इसको सुनेंगे कभी, तो प्लीज़ आप अपना feedback ज़रूर दिया करिए.
कभी आप ऐसे ही कभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हम लोग पेरेंट टीचर मीट्स भी करते हैं, बट अदरवाइज भी आप कभी व्हाट्सएप पे आप अपने क्लास को, बच्चों के क्लास कोऑर्डिनेटर्स का नंबर अपने पास रखिए, उनसे बीच बीच में टच में रहिए, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी लीजिए. टाइम्स आर चेंजिंग एंड दिस हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल. आपके फीडबैक्स से हमें इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है. हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं फीडबैक पे. बच्चों से एक सेमेस्टर में 2 बार फीडबैक लिया जाता है. फीडबैक देना मतलब आप जज की कुर्सी में बैठे हो, कहीं पे भी जल्दी जल्दी टिक नहीं लगाना है आपको. और ज़िंदगी में ये एटीट्यूड ही कभी मत रखिए. कहीं भी आप होटल में खाना भी खाने जाइए, अगर आपका मन नहीं है तो भले आप फीडबैक मत दीजिए, पर अगर आप दे रहे हैं तो आपने शायद स्कूल में कभी कहानी पढ़ी होगी पंच परमेश्वर वाली. आप एक बड़ी चेयर पे बैठे हो, आप अपने टीचर्स को मार्क्स दे रहे हो या आप सिस्टम को जज कर रहे हो, सो आपको उस समय बहुत सिंसियर होकर बहुत अच्छी तरह से कमेंट्स देने हैं, बहुत अच्छे से मार्किंग करनी है. मतलब बिल्कुल आपको लीनियंट भी नहीं होना है, स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, जो ट्रू स्टेटस है वो बताना है. बिकॉज फीडबैक्स आर नॉट यूज्ड एनीवेयर फॉर पनिशमेंट्स etc. They are always used, they are never for punitive reasons, they are always for improvement, quality improvement. क्वालिटी बढ़ेगी, आप 4 साल बाद पास आउट हो जाएंगे. मान लीजिए MITS ने और तरक्की की तो यू विल फील प्राउड टू से दैट आई हैव स्टडीड फ्रॉम, आई हैव गॉट माई डिग्री फ्रॉम MITS. सो वो होना चाहिए और उसमें आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ रहेगा. सो प्लीज़ बच्चों, कोऑर्डिनेटर्स बच्चों के पीछे पीछे भागते रहते हैं. बच्चे 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम निकाल कर मोबाइल पर ऑनलाइन फीडबैक होता है, बट वो देते नहीं हैं या देते हैं तो कई बार बहुत कैजुअल होते हैं. So please understand that you are now not in school, you have to become responsible citizens of this country. और जो आप करोगे उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आप पर या आपके ही भाई बहनों पर या आने वाले बच्चों पर ही पड़ेगा. जैसा हम बोएंगे वही हम आगे काटेंगे. कल को जब आप बॉस बन के बैठोगे तो आपके पास जो नए रिक्रूट्स आएंगे उनको कुछ नहीं आ रहा होगा. आप बोलोगे ये कैसे इंजीनियर आ रहे हैं, किस तरह के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, क्या इनको कुछ आता ही नहीं है इनको. सो बिकॉज योर फीडबैक विल हेल्प अस कि क्या बच्चे को पढ़ाना है. एंड आपको कॉलेज के टच में रहना है. इवन जब आप यहाँ से निकल जाएं, आपको जॉब लग जाए, देन यू विल बिकम नॉट आवर स्टूडेंट बट आवर एल्यूमिनी. देन यू बिकम आवर एल्यूमिनाई. ठीक है. एथिक्स के बारे में मैं एक जरा सा बता दूँ आपको. आई थिंक मेरा बहुत लंबा हो रहा है, बट आई कैन नॉट हेल्प इट. सो मेनी थिंग्स आर देयर. डिटेल में आपको डिपार्टमेंट्स बताएंगे. एथिक्स के मामले में एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्लेजियरिज्म या कॉपीराइट. आपने सुना होगा. तो फ्रॉम नाउ ऑन अपने मन में आप बिठा लो कि मैं कहीं से भी कॉपी नहीं करूँगा कोई भी चीज़. न किसी बच्चे का असाइनमेंट कॉपी करूँगा, न मैं किसी का कुछ कॉपी करूँगा, न मैं किसी किताब से या इंटरनेट से तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं करूँगा. आप रेफ़र करिए सब सोर्सेज को. यू कैन रेफ़र ऑल द सोर्सेज एंड यू कैन साइट द रेफरेंसेज ऑल्सो. आपको स्क्वायर ब्रैकेट में बताना होता है कि मैंने ये चीज़ इस रेफरेंस से ली है. दैट इज़ परमिसिबल. अदरवाइज ये थेफ्ट मानी जाती है, चोरी है ये, एकेडमिक चोरी. किसी चीज़ से हूबहू वैसा के वैसा कॉपी नहीं करना होता है. सो द इंस्टीट्यूशन हैज़ गॉट अ टर्निटिन नाम का एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास. तो आपकी सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सब जो हैं वो टर्निटिन से चेक होती हैं और द सिमिलैरिटी इंडेक्स 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आई जस्ट थॉट कि अभी आप लोग बहुत अटेंटिव हैं, नए हैं, यू विल लिसन. दैट इज़ वाई ये चीज़ भी स्लाइड में इंक्लूड की हुई है. बाकी आई थिंक आई नीड नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट प्रमोशन एंड ऑल दीज थिंग्स, दो दे आर अवेलेबल इन माई स्लाइड. कि आप पास कैसे होते हैं, आपका क्या क्राइटेरिया एग्ज़ाम में रहता है, वो सब. आई थिंक एग्जामिनेशन कंट्रोलर विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस कि हाउ यू, या आप पढ़ भी सकते हैं, ऑल द डेटा इज़ हियर, कि हाउ यू गो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर, क्या रिक्वायरमेंट है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में कैसे जाते हैं, आपका CGPA कैसे कैलकुलेट होता है, आपका SGPA कैसे कैलकुलेट होता है, आपको ग्रेड पॉइंट क्या है. ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपको स्लाइड देख के वैसे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, बट क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है. तो ये आपका फॉर्मूला है SGPA का, जिसको हम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं. तो जो आपका ग्रेड पॉइंट होता है 10, 9, 8 या 7 जो भी है, वो क्रेडिट से मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे किसी, फॉर एग्जांपल किसी कोर्स में 4 क्रेडिट्स हैं,
ठीक है, और आपका एक्सेलेंट आया है तो आपका ग्रेड पॉइंट कितना है, 9 है। क्रेडिट्स कितने हैं उस कोर्स में, कितने क्रेडिट थे, 4 क्रेडिट थे, तो आपके 9 इंटू 4 हो जाएगा। इसी तरह से सभी क्रेडिट्स के लिए होगा ग्रेड पॉइंट। और ग्रेड पॉइंट कैसे मिलेगा, आपके मार्क्स किस रेंज में है। 80 से 90 की परसेंटेज है तो 9 है, 60 से 70 है तो 7 है, ठीक है। सो दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ओनली जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू। सॉरी, आगे की जगह पीछे जा रहा है। यस, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। SGPA मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये इस तरह से अगर आपके 4 कोर्सेज में आपके ऐसे नंबर आए हुए हैं और क्रेडिट्स इतने हैं तो आपका SGPA 8.1 हो जाएगा। कई बार इसको 81% भी कई जगह पे कह दिया जाता है, बट वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ SGPA एंड CGPA। फिर जो चीज़ SGPA के लिए वी टेक कोर्सेज, different courses of the semester, CGPA के लिए we take different semesters। तो जैसे जैसे आपकी सेमेस्टर आगे बढ़ती चली जाएगी, ये सेमेस्टर 4 है, फिर सेमेस्टर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फाइनली जो CGPA आएगा वो आपकी मार्कशीट पे दिखेगा। एनीवे, ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम, बट आई रियली विश दैट whatever provisions are there for you, you take 100% benefit from them, and providing things या चीज़ों को क्या मैकेनिज्म बनाना हमारे हाथ में है, फॉलो करना आपके हाथ में है। सो we on behalf of MITS I wish you all the best, and I wish you a very good time at MITS. I wish that you join the institute in person, you come to the campus very, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप आ जाएं और हम सब सामने सामने बैठ के बात कर पाएं। लेकिन तब तक भी I wish that you will utilize each and every moment of your time, and we have told you, given you an overview कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लब्स हैं, everything has been told to you। और ये आपका चलता ही रहेगा because this is induction program as per the government norms। ये पहले 3 weeks का होता था, but because of online it has been now squeezed, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग को आप बाद में भी देखते रहेंगे, तो एक्सटेंडेड पीरियड तक आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू MITS once again।